Hello students, today I am going to teach you the lesson footprints without feet. So first of all, we are going to know something about the writer H.G. Wells. H for Herbert, G for George Wells. He was born on 21st September 1866 and passed away from this world on 13th August 1946. H.G. Wells was an English writer. It means that he was the writer of English literature. Means he served English literature with his intellect and all his abilities and eligibilities to English literature. He was prolific in many genres. Genres. The pronunciation of this word is very strange. It is pronounced genres. He was prolific in many genres. Genres means शैलियाँ होता है, styles, रचना पद्धति. Prolific means skillful, talented. So he was very skillful in many styles of the literature. साहित्य की अनेक रचना पद्धतियों में वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक थे. स्किलफुल थे मीन्स निपुण थे. Writing dozens of novels means he has written dozens of novels. Means he was a novelist. उपन्यासकार थे. And how many novels has he written? Dozens of novels. Short stories. He has also written short stories. Means he was short story writer also. And works of social commentary. Commentary कहते हैं समीक्षा को, टीका को. The second meaning of the commentary is annotation. सामाजिक समीक्षा भी इन्होंने लिखी हैं, समीक्षाएं भी लिखी हैं. सोशल कमेंट्री पर भी वर्क्स किए हैं, कार्य किए हैं. Satire means व्यंग. He has also written satire. It is also a type of literature, a form of, a device of literature, a manner of literature. Biography, he has also written biography. Biographic writer थे वो. जीवन कथाएं लिखी हैं.
लोगों के बारे में। एंड autobiography, he has also written his own autobiography, आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। He is now best remembered for his science fiction novels and is often called the father of science fiction. This is a great information about him. He is now best remembered, माने सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले व्यक्ति हैं। और किसके लिए? फॉर साइंस फिक्शन। फिक्शन मीन्स काल्पनिक उपन्यास। तो काल्पनिक उपन्यासों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा याद किए जाते हैं। He is remembered. Who is remembered? H.G. Wells. Best remembered for his science fiction novels and is often called, और प्रायः ये कहकर भी पुकारे जाते हैं, और क्या? फादर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के जनक कहकर पुकारे जाते हैं। It is a great achievement for the writer, for the poet, if his readers give him a literary nickname. यदि रीडर्स माने पढ़ने वाले, कवियों को पढ़ने वाले और लेखकों को पढ़ने वाले व्यक्ति उनको विशेष नाम, विशेष साहित्यिक नाम अगर दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है उसके लिए। तो रियली इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिज contribution to English literature that all the readers of him have given him a literary nickname, that is father of science fiction. उनके जो साइंस फिक्शन है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। Along with Jules Verne, always remember these two names along with H.G. Wells because they are also called the father of science fiction. Jules Verne and Hugo Gernsback, इनके साथ जैसे इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंस फिक्शन, वैसे H.G. Wells इज आल्सो नोन, वो भी जाने जाते हैं। नाउ we are going to know something about the introduction of the lesson. Footprints Without Feet is a science fiction novel, and this extract of your lesson, that is your lesson, has been taken from that fiction. So in introduction, can a man become invisible? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? साइटलेस हो सकता है? कैन अ मैन बिकम साइटलेस, अनसीएबल, जिसको देखा नहीं जा सकता। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक ऐसे ही वैज्ञानिक की कहानी है, हु डिस्कवर्स, जो खोजता है क्या, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे स्वयं को, किसी दूसरे को नहीं, स्वयं को इनविजिबल बनाया जाए, अदृश्य बनाया जाए। ऐसे वैज्ञानिक की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ सच अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल।
Does he use means being invisible. Does he use or misuse his discovery? जो डिस्कवरी उसने की, क्या उसको वो प्रयोग करता है कि उसका दुष्प्रयोग करता है? इन दिस लेसन वी विल नो दिस. इस पाठ में हम यही जानेंगे. The story is about a scientist named Griffin. This story is about a scientist, means this story tells the story of a scientist named Griffin, whose name is Griffin. ये कहानी एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है. He discovers, वो खोजता है, the rare chemicals. रेयर मीन्स दुर्लभ, यूनिक, स्पेशल, मैचलेस, जो सिंगुलर नंबर में है अभी. तो ही डिस्कवर्स अ रेयर केमिकल्स, बड़े दुर्लभ केमिकल्स की खोज करता है वो, which can make a man invisible, means those chemicals can make any man invisible. किसी भी आदमी को वो इनविजिबल बना सकते हैं. ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायनों को वो खोजता है. बट एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय पर, द मैन कैन बी टच्ड, मीन्स जब वो इनविजिबल तो हो जाएगा, ही विल बी हैविंग टेकन दोज केमिकल्स, रेयर केमिकल्स, दैट मैन विल बिकम इनविजिबल बट कैन बी टच्ड. इनविजिबल तो हो जाएगा, लेकिन उसको स्पर्श किया जा सकता है. एंड फेल्ट फिजिकली, और फिजिकली माने शारीरिक रूप से उसे महसूस किया जा सकता है, माने उसको अगर छुआ जाए तो छूने में आएगा. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, और आओ पढ़ें और ये प्राप्त करें कि हाउ ही यूजेज और मिस यूजेज हिज पावर्स फॉर हिज ओन. अपनी स्वयं की शक्तियों को वो कैसे प्रयोग करता है या दुष्प्रयोग करता है. Footprints without feet, this is the lesson and explanation of this lesson. I have prepared this explanation from your text. This is the gist of the lesson. You should know all about the theme of the lesson, because you are to answer the questions which will be asked in your question paper. The explanation of the passage is not asked in your examinations. Only short questions and long questions are asked. When we will have complete information about the lesson, we will be able to answer. Be serious to listen this information about this lesson. What is the lesson? Footprints without feet. Now I am going to start. Two boys saw footprints from somewhere. दो लड़कों ने देखा. फुटप्रिंट्स कहते हैं पैरों के पद चिन्हों को, पैरों के निशानों को. फ्रॉम नोवेयर, न जाने कहीं से. मीन्स दे saw the footprints which were coming nowhere, from nowhere. कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं मालूम, पढ़ तो रहे हैं निशान,
निशान तो पड़ रहे हैं, कोई चल रहा है उसके निशान पैरों के पड़ रहे हैं, लेकिन वो आ कहां से रहे हैं? They did not know. They were surprised. The writer means H.G. Wells has used here bewildered. किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, डर से जाते हैं। तो they were surprised to see the fresh muddy imprints. Fresh means new. वे आश्चर्यचकित थे और किसके लिए? टू सी देखकर, द फ्रेश मीन्स न्यू, नए, मडी मीन्स कीचड़ से सने हुए, इम्प्रिंट्स माने निशानों को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। They were astonished all of a sudden because footprints were coming from nowhere. न जाने कहां से आ रहे थे। वो आदमी नहीं दिख रहा था। That man was not visible. Whose footprints were those? वे फुटप्रिंट्स जिसके थे, जिस आदमी के थे, वो आदमी नहीं दिख रहा था। These were of a pair of bare foot. ये नंगे पैरों के एक जोड़े के थे। बेयर कहते हैं नंगे को, विदाउट शूज। As they gazed, जैसे ही उन्होंने स्टेयर्ड, घूर कर देखा, तो जब देखा तो क्या हुआ? What happened then? A fresh foot mark appeared from nowhere. जब देखा तो जैसे ही उन्होंने घूर कर देखा तो न जाने कहां से एक ताजा पैर का निशान दिखाई दिया। नोवेयर मीन्स न जाने कहां से, अपीयर्ड माने दिखाई पड़ा। फुट मार्क मीन्स पैर का निशान, फ्रेश मीन्स न्यू। देन दे सा फर्दर स्टेप्स, तब उन्होंने आगे और भी स्टेप्स देखे। डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे। देयर आफ्टर दे डिसअपीयर्ड, उसके बाद Those footprints disappeared all of a sudden, अचानक वे गायब हो गए। Please consider the condition of these two boys. इन दोनों लड़कों की दशा को आप थोड़ा सा विचार करें। आदमी दिख नहीं रहा है और फुटप्रिंट्स आ रहे हैं और सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पड़ा, वो पड़ा, वो पड़ा, और अचानक गायब हो गए। अजीबोगरीब स्थिति होगी उनके साथ। It would be very strange condition before them. You can realize that condition thinking about this scene. These footprints were of a scientist named Griffin. ये जो footprints थे of a scientist, एक वैज्ञानिक के थे, whose name was Griffin, जिसका नाम ग्रिफिन था। He had just discovered, उसने ठीक अभी खोजा था या खोज लिया था, how to make the human body transparent, invisible, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इधर से देखो उधर दिख रहा है, से देखो उधर दिख रहा है, जैसे ग्लास होता है, कांच। तो किस प्रकार से एक मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, ये उसने खोज लिया था। किया क्या था? What did he do?
He swallowed some drugs. Swallowed means eaten up. उसने कुछ ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स उसने सैलोड कर लिया था, निगल लिया था। और जैसे ही निकला, एज ही सैलोड दोज ड्रग्स, व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ? His body became as transparent as a sheet of glass. उसका शरीर हो गया इतना पारदर्शी जितना कि sheet of glass होता है। ग्लास की सीट होती, कांच की सीट होती है, कांच की चादर होती है या चद्दर होती है। It was before his footprints being seen. ये उसके पैरों के निशान दिखने से पहले था। जो पैरों के निशान बच्चों ने देखा उससे पहले की कहानी है ये। ड्रग्स इनविजिबल हो गया। But Griffin was rather a lawless person. अब देखिए किस कोई अच्छी चीज या कोई, अब यही समझ लीजिए कि अगर गन एक सोल्जर के पास है, आर्मी के एक सोल्जर के पास है तो यू यूज करेगा वो, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ में है तो वो मिस यूज करेगा, रॉबर के हाथ में है तो मार देगा जान से। तो अब इसी से उसका चरित्र समझ लेना चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन बाय दिस स्टेटमेंट, दिस इंफॉर्मेशन। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, परंतु ग्रिफिन एक कानून से न चलने वाला व्यक्ति था। His landlord disliked him. The landlord of Griffin. Landlord means मकान का मालिक। Dislike means hated him. उसको पसंद नहीं करता था, उससे घृणा करता था। वो अच्छा आदमी था। His landlord was a good man and he was a very bad man. ऐसी करतूत करता होगा, ऐसी डूइंग सोएंगी उसकी, जिससे वो मकान मालिक तभी घृणा करता है, तभी पसंद नहीं करता किराएदार को, जब किराएदार कुछ विचित्र घटनाएं करता है। सामान्य तौर पर जो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सोसाइटी, if we do not follow them, then what will happen? We are disliked. तो उसे डिसलाइक करता था एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास करता था कि भाग जाए तो ठीक है। इन रिवेंज, अब देखो बदले की भावना आ गई उसके अंदर। बदले की भावना में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उस ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। और आग लगाने के बाद क्या किया? ही हैड टू मूव। अब जब आग लगा दी तो ही वॉज हेल्पलेस टू रिमूव हिज क्लॉथेस टू गेट अवे। भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े रिमूव करने पड़े, उतारने पड़े, इनविजिबल होना पड़ा, नहीं पकड़ा जाता। सो ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर। इसलिए वो एक घर रहित, बिना घर वाला क्या बन गया? वेंडरर मीन्स घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लॉथेस, बिना कपड़े के और बिना मनी माने पैसे के। मीन्स
he was without clothes and he did not have money. So having these conditions, he became a homeless wanderer. The two boys had seen him thus. इस प्रकार ही उन दो लड़कों ने उसे देखा था, उसके फुटप्रिंट्स को देखे थे। आगे उसी जगह से ग्रिफिन escaped from the boys. ग्रिफिन लड़कों से बच निकला। escape means होता है बच निकलना। He was without clothes, बिना कपड़ों के था। in the mid winter, मध्य जाड़े का समय था। It was mid winter, chilly winter, bitter winter, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। At that time, उस समय बिल्कुल मिड विंटर का समय चल रहा था। एंड ही वॉज विदाउट क्लॉथेज, और बिना कपड़े के था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, इंस्टीड ऑफ मीन्स के स्थान पर, गलियों में घूमने के स्थान पर क्या किया उसने? ही इंटर्ड, वो प्रवेश कर गया। अ बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन के एक बड़े स्टोर में प्रवेश कर गया। और काहे के लिए? फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, ब्रोक ओपन मीन्स तोड़ दिया और खोला। तोड़कर खोलने को ब्रेक ओपन कहते हैं। बॉक्सेस, संदूकों को तोड़कर उसने खोला कपड़े पाने के लिए। टू गेट द क्लॉथेस, बिकॉज इट वॉज बिटर विंटर देयर। इट वॉज द टाइम ऑफ मिड विंटर। ही फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथेस, और गर्म कपड़ों से उसने अपने आप को फिट किया। मीन्स ही ओर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वियर, पुट ऑन वार्म क्लॉथेस, गर्म कपड़े पहने। ही हैड शूज, एन ओवरकोट, अ हैट, बट वॉज इनविजिबल। उसने क्या क्या पहने? गर्म कपड़े तो पहने ही, उसने जूते, एक ओवरकोट, एक हैट, ये सब कुछ पहना। बट देन ही वॉज ऑल्सो इनविजिबल। ऐसा नहीं कि वो विजिबल हो गया हो, कपड़े केवल दिखाई दे रहे हैं टंगे हुए, बस बीच के स्पेसेस तो दिखाई देंगे ना। He took cool meat, ठंडा मांस उसने खाया। एंड कॉफी, और कॉफी भी। इन अ रेस्टोरेंट, उसी लंदन स्टोर के अंदर रेस्टोरेंट होगा उसी में। He also took meal, उसने भोजन भी किया। स्वीट्स, मिठाइयाँ खाई। वाइन, he also drank some, but not some, wine, etc. In the grocery shop, परचून की दुकान में उसने ये सब कुछ किया। वहीं अंदर होगी, वहाँ बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जैसे अपने हमाल्स होते हैं, सब कुछ होता है उनके अंदर। Finally, he slept on a pile of quilts inside. और अंत में
स्लीप ऑन का सेकेंड फॉर्म ऑफ द स्लीप ऑन मीन्स स्लेप्ट ऑन, सो गया। और कहाँ सोया? खाना पीना खा लिया खूब कस के। ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइल्स, रजाइयों के ढेर पर, इनसाइड, अंदर ही। रजाइयों के ढेर पर वो सो गया। He did not wake up till the next morning, अगली सुबह तक वो नहीं जगा। He did not wake up means he did not get up till the next morning, अगली सुबह तक वो जगा नहीं, सोता ही रहा। बहुत भीषण सर्दी थी, थोड़ी गर्मी लगी, सो गया मौज से। When the servant came, जब सर्वेंट आए, अगली सुबह जब नौकर आए, he began to run, उन्हें देखकर वो भागने लगा। They chased him, they means servants, chase means पीछा करना, उसका पीछा किया। He escaped by taking off his newly found clothes, वो भाग निकला, escape means भाग निकला, by taking off, उतारते हुए। टोपी फेंकी उसने, हैट फेंका, ओवरकोट उतार कर फेंक दिया। जैसे जैसे वो फेंकता गया वैसे वैसे वो इनविजिबल होता गया। तो अभी अभी जो उसने क्लॉथेस और कपड़े आदि पाए थे लंदन स्टोर में, वो सब कुछ उतारते हुए वो भाग निकला। अब क्या था, तो फिर सर्दी लगने लगी उसको। मौसम तो नहीं बदला, द सीजन डिड नॉट चेंज एट दैट टाइम। दिस टाइम ही इंटर्ड अ थिएट्रिकल कंपनी, इस बार वो थिएट्रिकल कंपनी में प्रवेश कर गया। थिएट्रिकल मीन्स नाटक कंपनी में वो प्रवेश कर गया, घुस गया। नाटक कंपनी रही होगी, उसमें तो सब पोशाक होती हैं, ड्रेसेस होती हैं हर प्रकार की। He hoped to find some clothes and it was his hope that he could find some clothes there, उसकी ये आशा थी कि वो कोई कपड़े वहाँ प्राप्त कर सकता है। Shivering with cold, कांप रहा था बड़ी तेज। Shiver means कांपना होता है, ठंड से कांपते हुए। He hurried to Drury Lane, सर्दी से कांपता हुआ वो ड्ररी लेन में चला गया, गली में चला गया। ड्ररी लेन एक ऐसी गली थी लंदन में जहाँ पर थिएट्रिकल कंपनियाँ थीं, उनके शोरूम्स थे। इट वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ये थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। हमने जैसे बताया कि केंद्र था, यहाँ पर ढेर सारी कंपनियाँ थीं, जहाँ पर थिएटर कंपनी से संबंधित जो ड्रेसेस वगैरह हैं सब मिलती थी। He soon found a suitable shop, तुरंत ही, जल्दी, soon means जल्दी, उसे एक अच्छी, suitable means उपयुक्त शॉप मिल गई, दुकान मिल गई। He went up stairs, वो ऊपर चला गया। अप स्टेयर्स माने दुछत्ती को कहते हैं, ऊपर वाले खंड में चला गया। बट केम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला।
कैसे निकला, कैसा रूप बनाकर। He was now wearing bandages. अब वो पट्टियां बांधे हुए था। Those were round his heads, forehead, जो उसके मत्थे के चारों तरफ थी, ऐसी पट्टी, यहाँ पर पट्टियां बांधे हुए था। और वो पहने हुए था डार्क ग्लासेस, काले रंग का चश्मा पहने हुए। ग्लासेस बोलते हैं चश्मे को। और क्या किया उसने? फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा रखे। भाई थिएट्रिकल कंपनी में तो सब कुछ मिलेगा, तो उसने जो फॉल्स नोज, नकली नाक लगा रखी थी। इसके बाद बिग बुशी साइड विस्कर्स, झाड़ीदार गलमुछ, विस्कर्स कहते हैं मुच्छों को। ये ऐसे बड़ी बड़ी मुच्छें, ऐसे वाली मुच्छें, गलमुच्छें लगा रखी थी। और ये जब पूरा काम कर लिया उसने, अपने आप को फिटअप कर लिया तो उसने क्या किया? ही अटैक्ड अ शॉपकीपर, दुकानदार पर उसने आक्रमण कर दिया, बड़ी जोर से दे मारा कोई चीज उसके ऊपर। और केवल इतना ही नहीं किया, देन ही रॉब्ड, लूट लिया हिम, माने उसे, ऑफ ऑल हिज मनी, पूरा धन उसका छिना लिया। लावे हट। He then went to आइपिंग विलेज। इसके बाद वो वहां से आइपिंग नाम के गांव चला गया। फ्रॉम लंदन, लंदन से वो भाग निकला लूट लाट करके। There he booked 2 rooms, पैसा था, वहां उसने 2 रूम बुक कराए। दो रूम आइपिंग विलेज पर, एक इन थी, इन माने सराय थी, और उस सराय में उसने 2 रूम्स बुक करा लिए। एट लोकल इन कहते हैं सराय को। नाउडेज, आजकल हम उनको किस रूप में समझें? होटल्स, विलेज होटल्स। बिलोंगिंग टू मिस्टर हॉल, मिसेज हॉल। और ये जो इन जो थी, अर्थात जो शराय थी, ये किससे संबंधित थी? मिसेज हॉल से। अब इनके साथ में भी प्रॉब्लम होने वाली है। लॉलेस पर्सन जहाँ भी रहता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई कानून नहीं मानना, कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं, चाहे जितना टीचर्स उनको बोले, उनको मानने नहीं है। The arrival of a stranger at in winter amazed the villagers. एक अजनबी का जाड़े के समय में इनमें आगमन, amazed means astonished the villagers, ग्रामीणों को आश्चर्यचकित कर रहा था। means villagers were amazed or astonished or surprised to see the arrival of a stranger in an inn, especially in the winter season. जाड़े के मौसम में वो तो अंग्रेज लोग जहाँ पर हैं वहीं रहते हैं, बहुत भीषण सर्दी होती है वहाँ, वो इधर उधर नहीं जाते हैं। सबको बड़ा लग रहा था कि बड़ी विचित्र कहानी है, ये कहाँ से आया है, ये कौन है।
मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो उसकी लैंडलॉर्ड, इनका जो लैंडलॉर्ड था अर्थात जो मालिक था उसकी जो पत्नी थी मिसेज हॉल, वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हिम, चाहती थी उससे कुछ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना चाहती थी। ये आया है जाड़े में जब कोई पैसे की कहीं कोई उम्मीद नहीं होती है और वो आया और बुक कराया, पहले ही पैसा दे दिया, तो उसको थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहती थी लॉलेस पर्सन से। अभी देखना परेशान करेगा ये। बट ही टोल्ड हर, लेकिन उसने उसको बता दिया, ग्रिफिन ने उसको बता दिया, दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, वो नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। समझ रही हो? निकल लो यहां से। ही ऑल्सो टोल्ड हर, ये भी, और इधर आओ इधर आओ, एक चीज और सुन लो। Then an accident had affected his face, ये जो चेहरा देख रही हो बिगड़ा हुआ ना, तुमको दिख रहा है, एक दुर्घटना हो गई थी जिससे ये कुप्रभावित हो गया था चेहरा, ऐसा हो गया है। दिमाग ज्यादा न लगाना तुम। द स्टोलन मनी, जो चुराया हुआ, जो लंदन से चुराया हुआ जो धन था, लूटा हुआ, चुराया क्या, रॉब्ड मनी जो थी, डिड नॉट लेस्ट लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक नहीं चली। ऐसा धन बहुत समय तक नहीं काम करता है। ही however means किंतु वह pretended that he was expecting some money at any moment. चुराया हुआ धन काफी समय तक नहीं चला, लेकिन उसने बहाना बनाया। प्रेटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, कि उसे किसी भी क्षण धन की प्राप्ति की आशा थी। मतलब उसने ये सोचा कि मुझे धन की अब जरूरत है, पैसे की जरूरत है, किसी भी क्षण पड़ सकती, कभी ये मांग सकती है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी देर पश्चात क्या हुआ, अ क्यूरियस एपिसोड occurred means happened, एक विचित्र घटना, एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। क्यूरियस मीन्स होता है विचित्र, करियस भी बहुत से लोग कहते हैं इसको, क्यूरियस वैसे बोला जाना चाहिए। एपिसोड मीन्स हैपनिंग, अक्योर्ड मीन्स हैपेंड। क्या हुआ, ग्रिफिन हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, ग्रिफिन ने अपने आप को इनविजिबल फिर से कर लिया, सब कुछ उतार के फेंक दिया होगा। और क्या किया, ही इंटर्ड अ क्लर्जी मैन्स हाउस, वो एक पादरी के घर में घुस गया। उसको ये मतलब नहीं है कि ये धर्म का प्रचारक है और अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ सोच नहीं थी उसके अंदर, किसी का भी हो। ऐसे ही लोग मंदिर का दान पात्र लूट ले जाते हैं, लॉलेस पर्सन। द क्लर्जीमैन awoke जगा and he asked him to surrender, और उससे सरेंडर कर, आत्मसमर्पण करने के लिए उसने बोला। बट ही कुड सी नो वन, लेकिन वो किसी को देख नहीं सका क्योंकि वो इनविजिबल था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द रूम वॉज एम्प्टी, की जो कमरा था जिसमें कुछ आवाज आई थी जिसके कारण वो जगह था, वो बिल्कुल खाली था। एट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी जो डेस्क थी वो खुली हुई थी। एंड मनी वॉज मिसिंग, और जो पैसा रखा था उसमें वो मिसिंग था, गायब था।
इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डनरी फॉर द क्लर्जीमैन। ये पादरी के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी घटना थी, बहुत विचित्र घटना थी कि कोई व्यक्ति तो है लेकिन दिख नहीं रहा, और देखो ये सब कुछ डेस्क खुली हुई है और उससे पैसा भी गायब है। The landlord and his wife Mrs. Hall were up very early. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी मिसेस हॉल बहुत जल्दी ही जग गईं। They were surprised to see the scientist's door wide open. They were surprised, वे आश्चर्यचकित थीं, to see the scientist's door, वैज्ञानिक के जो कमरे का दरवाजा था वाइड ओपन, पूर्ण रूप से खुला था, उसको देख करके हैं ये तो बंद रहता है, ये खुला हुआ क्यों है। He peeped around. They peeped around. उन्होंने पीप माने झांकना होता है, राउंड चारों तरफ झांक कर देखा, बट सा nobody, लेकिन कोई नहीं दिखा। Clothes, bandages, etc. were in the room. कमरे में थे, क्लॉथेस पड़े हुए थे एक तरफ, बॉन्डेजेस पड़े जो सर में बांधे थी वो भी पड़ी हुई थी एक तरफ, और सब कुछ ओवरकोट वगैरह जो कुछ भी वो पहने हुए था सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था, लेकिन वो नहीं दिख रहा था। एवरीथिंग वॉज इन डिसऑर्डर, और हर चीज डिसऑर्डर में थी, तितर बितर थी, ऑर्डर में नहीं थी, कमरा पूरा बिखरा पड़ा था। All of a sudden, अचानक मिसेज हॉल heard a sniff close to her ear. अचानक मिसेज हॉल ने heard माने सुना, और क्या सुना मिसेज हॉल ने? A sniff, सांस लेने की आवाज। सूंघने की आवाज को भी हम कहते हैं स्निफ। ऐसे करना, सांस लेने की आवाज और सूंघने, क्लोज टू हर ईयर, बिल्कुल अपने कान के पास। वो आया होगा और कान के पास आकर ऐसे किया होगा उसने। फिर क्या हुआ? देन the bedpost leaped up. बड़ी अजीब कहानी है भाई। बेडपोस्ट कहते हैं चारपाई को, बेड को। लीप्ट अप माने ऊपर उछली, और क्या हुआ? इट डेज्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। बताओ क्या हुआ होगा? यह स्वयं उसके चेहरे पर जा गिरी, चारपहिया की पूरी अभेर दी उसने। Both of them turned away in terror. वे दोनों भय से मुड़े, भागे बड़ी तेज। क्या हुआ? कहां से ये चारपहिया, क्या है सब? A chair pushed both out of the room. एक कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। पुश मीन्स होता है धकेल देना, पुश आउट मीन्स धकेल दिया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल्ड डाउन क्राइंग। चिल्लाते हुए मिसेज हॉल, लगभग चिल्लाते हुए
लगभग चिल्लाते हुए वो गिर गईं। लगभग चिल्लाते हुए वो गिर गईं। She felt sure that the room was haunted by spirits. उन्हें विश्वास हो गया कि कमरे में भूत प्रेत का वास हो गया है। Haunted by spirits माने भूत प्रेतों का वास, जहाँ भूत प्रेत लगते हैं। Griffin suspected as a thief. ग्रिफिन को एक चोर के रूप में सस्पेक्ट किया गया। कैसे? Soon the burglary, चोरी in the clergyman's house became known. जान ली गई। The strange scientist was suspected of having a hand in it. ये जो विचित्र वैज्ञानिक था, इस पर शंका की जा रही थी कि इसका इसमें हाथ है। द सस्पिशियन बिकेम स्ट्रॉन्गर, और ये जो सस्पिशियन था जो शंका थी, ये और मजबूत हो गई। एज ही प्रोड्यूस्ड रेडी कैश, जैसे ही उसने प्रस्तुत किए नकद पैसा। और कहाँ? सराय में। अर्लियर ही हैड एडमिटेड ऑफ नॉट हैविंग, और उससे पहले ही, थोड़े दिन पहले ही उसने कहा था, जब मिसेस हॉल ने उससे पैसे मांगे थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और बिल्कुल तुरंत ही उसने थोड़े दिन बाद पैसे प्रस्तुत किए, तो उसने कहा इसी ने चुराया होगा। विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली कॉल्ड। चुपचाप गुप्त रूप से विलेज के कांस्टेबल को अर्थात सिपाही को बुलाया गया। बट मिसेस हॉल डिड नॉट वेट फॉर द कांस्टेबल। मिसेस हॉल को प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी में थी कि उन्होंने सिपाही के आने की प्रतीक्षा नहीं की, इंक्वायरी शुरू कर दी। She went to the scientist, वो साइंटिस्ट के पास गई। She asked him, उन्होंने उससे पूछा क्या? What he had been doing to her chair upstairs. क्या पूछा कि ऊपर की मंजिल पर उसकी कुर्सी के साथ क्या कर रहा था? हैं? तेरा राज खुल गया। She wanted to know, जानना चाहती थी, how he had entered a locked room, वो कैसे बंद कमरे में जिसमें ताला लगा है वो कैसे घुस गया, कैसे प्रवेश कर गया, ये भी बता मेरे को। At this the scientist grew angry. इस पर जो वैज्ञानिक था वो क्रोधित हो गया, गुस्से में फिर आ गया, फिर कुछ होना है। He suddenly shouted at her. इस पर वैज्ञानिक क्रोधित हो गया और उस पर एकदम चिल्ला पड़ा कस के। He then threw off bandages. तब उसने फिर अपनी पट्टियां फेंक दी, स्पेक्टिकल्स माने ग्लासेस, चश्मा फेंक दिया, नोज, सब कुछ फेंक दिया। He had become invisible. फिर होने वाला है कुछ, अदृश्य हो गया। The horrified people now saw at a headless man. अब जो horrified माने भयभीत लोग थे जो देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा? एक हेडलेस, भाई ऊपर वाला पोर्शन ये उतार कर फेंक दिया, बैंडेजेस फेंक दी, नोज फेंक दिया, गॉगल्स फेंक दिए, सब फेंक दिया उसने। तो अब यहाँ से ओवरकोट वगैरह पहने थे तो खोपड़िया उसकी दिख नहीं रही थी। तो हेडलेस पर्सन जैसे ही उन लोगों ने देखा, कहाँ से ये बवाल आ गया, ऐसा सोचा होगा। अब ये आए मिस्टर जेफर्स, ये कांस्टेबल हैं, अराइव्ड माने पहुंचे वहाँ, डंडा ठोंकते हुए पहुंचे होंगे, अभी पता चलता है तुमको भी।
He was surprised. उसे भी आश्चर्य हुआ। और किस बात का? That he had to arrest, कि उसे अरेस्ट करना था a man, एक आदमी को, विदाउट हेड, एक ऐसा आदमी जिसका सर नहीं है, ऐसे आदमी को पकड़ना था। आज तक तो मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। But he had to arrest him in any case, लेकिन उसे अरेस्ट करना ही था किसी भी तरीके से, हर हालत में पकड़ना था। अब क्या हुआ? So he tried to catch the scientist, इसलिए उसने प्रयास किया साइंटिस्ट को पकड़ने का। But he was throwing off one garment after another. खोपड़ी तो खाली थी, इसके अलावा और जो गारमेंट, जो ड्रेसेस उसने पहन रखी थी, वो फेंकना शुरू किया उसने, एक के बाद दूसरा। अब क्या हुआ इधर? कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन। अब कांस्टेबल बेचारा संघर्ष कर रहा था एक ऐसे आदमी के साथ। ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख नहीं सकता था कुल मिलाकर। अब ऐसे आदमी के साथ कैसा संघर्ष होगा? पढ़ रहे हैं लेकिन कहाँ से आ रहे हैं कुछ समझे में नहीं आ रहा। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, but they received blows, लेकिन उन सभी को प्रहार पड़े। Only from invisible griffin, इनविजिबल ग्रिफिन ने, अदृश्य ग्रिफिन ने सभी को ब्लोज दिए, अर्थात प्रहार दिए, जितने भी उसकी मदद करने आ रहे थे। इन द एंड, अंत में क्या हुआ? जेफर्स बिकेम अनकॉन्शियस। बेचारा क्या हुआ? बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। There were cries of, चारों तरफ केवल आवाजें ही आईं। होल्ड हिम, कौन पकड़े? उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, ऐसी आवाजें आईं, लेकिन कौन करे? बट ग्रिफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया। नो वन न्यू, कोई नहीं जान पाया वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, कि उस पर कहाँ से हाथ पड़ रहे थे। तड़ा मारे जा रहा था वो सबको। इस तरीके से इन दिस वे दिस लेसन ended. I hope that the theme and the whole story you have understood well the theme. I will send the question answer of this lesson soon in your group. Thank you very much for watching this